Yes. Okay, so in today's lecture, we are going to see the types of electromagnetic waves, and also we will just see summarize whatever we have done so far in last few lectures, and also we will study the properties of different types of electromagnetic waves. Actually, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है. स्पेक्ट्रम. Let me share the screen so that you can understand it in a better way. Yes, I hope you can see the screen. Here we can just see the electromagnetic spectrum. अभी स्पेक्ट्रम ये वर्ड जब हम बोलते हैं तो हमको नॉर्मली ये लाइट का स्पेक्ट्रम हमको इमेजिन होता है. जैसे हम यहाँ पे डायग्राम पे देखते हैं कि वी नो दैट द लाइट, white light, when actually it passes through the prism, it just gets splitted up into 7 colors, constituent colors. तो ये 7 constituent colors के अंदर वो split हो जाता है. तो ये इसका बटना, इसको ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, तो उसको हम the process of in which the light is transmitted or light is converted into 7 constituent colors, called as the dispersion. Okay, so ये dispersion जो है, तो इस dispersion के process के द्वारा हम ये clear देख सकते हैं कि किस तरह से ये white light ये 7 constituent colors के अंदर बटता है. ठीक है, ये तो समझ सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे एक बात देखो कि यस, अभी लाइट की सिर्फ बात नहीं कर रहे हम, बल्कि लाइट के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने ऑलरेडी देखे हैं. ठीक है, अभी मे भी आपको पता नहीं रहेगा, बट लाइट के साथ साथ बहुत सारे अलग भी अदर टाइप ऑफ वेव्स भी है जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है. लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ही, नो डाउट, लेकिन लाइट के साथ बहुत सारे दूसरे टाइप्स भी है जिनका वेवलेंथ लाइट से थोड़ा अलग है, और इसीलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, because they are composed of electric and magnetic fields which are sinusoidally oscillating in the space and traveling with the speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, in which the electric field is perpendicular to the magnetic field and both of them are perpendicular to the direction of propagation, जो कि हमने already last lectures में देखा था. तो एक बार फटाफट रिव्यू करते हैं what are electromagnetic waves and how they are produced. Yes. So this is the transverse nature of electromagnetic waves. In general, we know that the transverse waves always pass through the medium, and there are some concepts which are defined like wavelength, uh, again the amplitude, and so on. All this. Again, magnetic field and electric field in case of electromagnetic wave is always perpendicular to each other, as we have seen last time, and both of them are just perpendicular to the direction of propagation of the waves. राइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर से जो नोट किया हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकल प्लेन में वेरी हो रहा है, और जो रेड कलर से जो डिनोट किया हुआ है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्चुअली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेरी हो रहा है. एंड बोथ ऑफ देम आर इन सेम फेज ऑलवेज. ये भी हमको अच्छी तरह समझना है. सेम फेज का मतलब क्या होता है, देखो कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, at the same time magnetic field also becomes maximum. Can you see that in the diagram? Even when the electric field becomes zero, the magnetic field also becomes zero at the same time. And again, when the electric field becomes negative, the magnetic field also becomes negative in the same duration. So time intervals जो है, time period दोनों के सेम रहते हैं, frequency दोनों का सेम रहता है, और wavelength भी सेम रहता है. इसमें देखा जाता है कि सिर्फ डायरेक्शन उनके अलग अलग है. बस डायरेक्शन एक का वर्टिकल है, एक का हॉरिजॉन्टल है, बाकी सब सेम है. phase is going to be the same. Both of them are going to be in the same phase. Both of them attain their maximas at the same time, zeros at the same time, and negative also at the same time. That's why they are supposed to be in same phase, no doubt. Then again, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में एक जो कॉमन बात ये है कि इनका स्पीड बहुत ज्यादा है. ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. You can see here 3 lakhs kilometer per second, which means it is the tremendous speed here. ये स्पीड इतना खतरनाक है कि इस स्पीड से अगर हम ट्रैवल करते हैं तो पूरा अर्थ के आसपास हम 8 बार चक्कर काट सकते हैं.
सोचो ठीक से, वी कैन जस्ट कवर 8 टाइम्स सर्कमफरेंस ऑफ दिस अर्थ इन 1 सेकेंड, जस्ट इन 1 सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर हम 8 बार चक्कर काट सकते हैं अगर हम उस स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो, ठीक है, अर्थ के आसपास। तो ये हम ये समझ सकते हैं, स्पीड इज वेरी मच लार्ज विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यही स्पीड है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से हैं, ठीक है ना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या सिर्फ सन में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होते हैं, तो क्या वो सिर्फ हमको जो मिलता है वो सिर्फ लाइट ही मिलता है क्या? क्या हम सिर्फ लाइट ही एक्सपीरियंस करते हैं सन से? बिल्कुल नहीं। लाइट के साथ हमको पता है कि हीट भी मिलता है। एक्चुअली लाइट एंड हीट, दीज आर टू डिफरेंट वेव्स। लाइट का हीट के साथ कोई संबंध नहीं है और हीट का लाइट के साथ कोई संबंध नहीं है। Light is a different type of electromagnetic waves, and heat is also electromagnetic waves, but that is of different type. You can see its wavelength is actually different. तो light का wavelength अलग होता है और heat का wavelength अलग होता है। और even not सिर्फ light और heat, बल्कि light और heat के अलावा बहुत सारे waves sun के emit किए हुए radiations के अंदर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक्स रेज, जो मैंने लिस्ट कल बताया था पूरा, एक्स रेज भी उसके अंदर होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी उसके अंदर होते हैं, गैमा रेज भी होते हैं, माइक्रोवेव्स भी होते हैं, इंफ्रारेड रेज भी होते हैं। लाइट तो होता ही है, नो डाउट, बट इवन माइक्रोवेव्स के भी नीचे जो नीचे की कम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स है वो भी उसके अंदर होते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा एक वाइड स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो कि सन से निकलता है। एंड सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली sun is the source of all the electromagnetic waves. If you just see in the diagram, then we can just make it clear that what are the types of electromagnetic waves. See here, तो इसमें सबसे पहले हम जब देखते हैं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स है वो है रेडियो वेव्स। यू कैन जस्ट सी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो कि हम नॉर्मली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के अंदर यूज करते हैं, मतलब जिनके थ्रू जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स जो है, जो हम रेडियो सुन सकते हैं, तो वो प्रोग्राम्स जिसके अंदर से ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं, उसको हम रेडियो वेव्स बोल सकते हैं। यस, यू कैन जस्ट सी दैट दीज आर द radio waves we can see, okay, which are emitted by a antenna। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है वहाँ पे एक एंटीना बिठाया हुआ होता है, तो वो एंटीना में से ये वेव्स जो है वो चारों तरफ ट्रेवल करते हैं। यस, देन अगेन वी कैन जस्ट सी द सेकंड टाइप ऑफ वेव इज माइक्रोवेव। ठीक है, जस्ट वी कैन सी इन द डायग्राम, कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं आराम से कि वहाँ पे माइक्रोवेव ओवन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक देख सकते हो ठीक से, ये घर के अंदर ये माइक्रोवेव ओवन है जिसके अंदर खाना पक रहा है। तो ये माइक्रोवेव्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर। so they are also the special type of electromagnetic waves only। इवन जब हम मोबाइल से को यूज करके जब बात करते हैं तो भी हम एक तरह से माइक्रोवेव सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। तो द इंफॉर्मेशन इज सेंड एंड रिसीव्ड in the form of microwaves in this case। ओके, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि माइक्रोवेव्स के फॉर्म में ही ये इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव किया जाता है। ठीक है, जब भी कोई कम्युनिकेशन किया जाता है, नॉट ओनली माइक्रोवेव्स, इवन इससे भी कम फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है वो भी इसमें यूज होते हैं, नो डाउट। देन कम्स टू इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इंफ्रारेड रेज जो है तो इनको हीट रेज भी कहा जाता है। एक्चुअली these are called as the heat rays, and they are also called also used to take the photographs, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफ वगैरह यूज लेने के लिए वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट, दिस इज द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वी कैन सी विजिबल लाइट which consists of 7 different colors starting from violet to red as we already know। तो विब्ग्योर जो पूरा ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर में सारे जो कलर्स है तो वो यहाँ पे ऑलरेडी है। और ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, दैट मीन्स लाइट, विजिबल लाइट इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जबकि यहाँ पे दूसरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमको ऑलरेडी पता है, जैसा कि इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इवन उसके आगे जो आप जाते हैं
तो उसमें आ जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि सवेरे सवेरे जब हम धूप में बैठते हैं तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज का ही ये काम है जो हमारे स्किन के नीचे वो डी डी जो विटामिन है, विटामिन डी सिंथेसाइज करने का उनका काम होता है। तो ये सब चीजें है। इवन एक्स रेज आर द रेज विच आर जस्ट हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी देन अल्ट्रावायलेट रेज। अब यहाँ पे देखो एक एक बात यहाँ पे याद रखो ठीक से कि जैसे हम यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, देखो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। Okay, frequency, you can just see how large is the frequency of these gamma rays or X rays here, you can see. But as we just go from right to left in this way, then frequency is decreasing. But the wavelength, if we see wavelength, दो waves के बीच में का जो distance है, या उसको हम बोल सकते हैं दो crest के बीच में का जो distance होता है, इसको ही wavelength बोला जाता है। This wavelength is more in this case than these waves here. ये वेव्स का वेवलेंथ थोड़ा कम है, और अगर इस तरफ जाते हो तो वेवलेंथ और कम हो गया, ये देखो ठीक से। और यहाँ पे अगर देखते हो तो वेवलेंथ और ही कम हो गया। तो एक्स रेज और गैमा रेज का जो वेवलेंथ है वो तो देखो कितना छोटा हो सकता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, frequency increases but the wavelength decreases, no doubt. But as we go from right to left, on the other hand, then the frequency decreases but the wavelength increases. Yes, so we can just say that these radio waves are the waves with maximum wavelength but minimum frequency. Okay, frequency is the smallest for them and wavelength is going to be largest one for them. Okay, wavelength is highest. Okay, but as we go from left to right here, the wavelength goes on decreasing and frequency goes on increasing. So we can just expect that these gamma rays are the rays with highest frequency but at the same time lowest wavelength, no doubt. Yes, तो एक्स रेज के बारे में तो सभी जानते हैं। तो एक्स रेज जो होते हैं, तो ये एक्स रेज यूज करने के लिए या एक्स रे का स्कैन करने के लिए बोन्स का फ्रैक्चर वगैरह यूज फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं डॉक्टर लोग के द्वारा, ठीक है नहीं। और उसके बाद आ जाता है गैमा रेज। तो गैमा रेज जो है तो वो भी एक तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, नो डाउट। दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स but they are very with high frequency. They are used in the cutting and बहुत सारा ज्यादा penetrating power इनका होता है। इसके कारण उनको penetrating के लिए या cutting के लिए यूज किया जाता है। और इवन कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑपरेशंस के अंदर भी उनको एज अ नाइफ करके यूज किया जाता है, ठीक है, सर्जिकल नाइफ। क्योंकि बहुत जो नाजुक ऑपरेशन होते हैं तो उसके अंदर गैमा रेज यूज करके ऑपरेशंस किए जाते हैं। सो मेडिकल में भी बहुत सारे यूजेस है इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो अभी आपको एक आइडिया, तो रफ आइडिया तो आ गया रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली क्या है एक्चुअली। यस, वी कैन जस्ट सी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द sequential order of all the electromagnetic waves in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency. That is called as a electromagnetic spectrum. तो स्पेक्ट्रम मतलब एक तरह का अरेंजमेंट है। ये सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको जब हम एक सिर्फ अरेंज करते हैं, ठीक है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के साथ, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। यस, लेट अस गो टू द नेक्स्ट। Okay, now we can just have a look on their wavelengths actually. तो यहाँ पे अगर देखते हो ठीक से तो वेवलेंथ जो है तो इनका सबसे पहले अगर बात करते हैं रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली 10⁻³ मीटर के रेंज में होता है। 10⁻³ मीटर मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हो गया। सोचो एक वेव अगर 1 किलोमीटर इतने वेवलेंथ का अगर रहेगा तो फिर उसका कितना ज्यादा उसका वेवलेंथ रहेगा वो तुम समझ सकते हो आराम से, ठीक है। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। देन कम्स टू माइक्रोवेव्स। देयर वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻² अप्रोक्सीमेटली। दैट मींस 10⁻² मीटर मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के आसपास ही हो गया, है कि नहीं। Then again, infrared rays, if you just talk about, then they have their wavelength in the order of 10⁻⁵ मीटर। मतलब मीटर का अगर हम 10⁻⁵ पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे
मतलब 1 लाख टुकड़े अगर कर देंगे तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज का जो वेवलेंथ है तो वो इतना छोटा होगा जो 1 मीटर का 1 लाख पार्ट। 1 लाख मतलब कितना हो गया? अब देखो 1 मीटर खुद 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसलिए हमको मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सोचो मिलीमीटर कितना छोटा होता है। यस, स्केल के ऊपर आपने सभी ने देखा है, जो एक एक मिलीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है, उसके अंदर 10 लाइन होते हैं इस तरह से छोटे छोटे, राइट। उसमें से एक लाइन को हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं। तो ये 1 मिलीमीटर को अगर हम और 100 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उतना जो छोटा पार्ट है वो एक्चुअली 10⁻⁵ कहलाता है, मीटर कहलाता है। और दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द वेवलेंथ ऑफ दिस infrared rays here. Again, if we just go to the visible light, ये लाइट है, लाइट। तो लाइट का जो वेवलेंथ है तो वो तो इससे भी छोटा होता है। ऑलमोस्ट इट इज इन द रेंज ऑफ 0.5 into 10⁻⁶ मीटर एक्चुअली। दैट मीन्स इट इज द 1000th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के 1000th पार्ट से भी छोटा ये लाइट का वेवलेंथ हुआ करता है, याद रखो ठीक से। देन अगेन इफ यू जस्ट गो टू द अल्ट्रावायलेट रेज here, then ultraviolet rays have their wavelengths which are in the range of 10⁻⁸ मीटर। उसमें भी मतलब वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 10⁻⁸, बट देयर इज अ रेंज एक्चुअली। मे बी दैट 1 into 10⁻⁸ टू सपोज 2 into 10 या सपोज 9 into 10⁻⁸, ऐसा एक रेंज है। तो वो रेंज, और उसमें भी क्या है ना कि ऐसा कोई एकदम एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन नहीं है कि यहाँ से ये वेव्स खत्म होते हैं और यहाँ से दूसरे वेव्स चालू होते हैं, नहीं। द वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सो स्लोली दैट जो वेव्स जो है दे वेरी वेरी स्लोली जस्ट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम विजिबल लाइट टू अल्ट्रावायलेट रेज, और इवन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज टू एक्स रेज। दैट मीन्स अभी नेचर के अंदर ऐसा नहीं है कि ये विजिबल लाइट है या ये अल्ट्रावायलेट रेज है। ये नाम सब हमने दिए हैं, मतलब इंसान ने दिए हैं। नेचर ने ऐसे कोई नाम नहीं दिए है उनको। तो एक्चुअली नेचर ने इनके बीच में जो फर्क किया है वो सिर्फ वेवलेंथ का फर्क किया है, और इन वेवलेंथ के फर्क की वजह से ही उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग है, और इन प्रॉपर्टीज के अलग अलग होने की वजह से उनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। सिर्फ हमको पहचानने आने के लिए हमने उनको नाम दे के रखे हैं इस तरह से। तो बट नेचर के अंदर उनका उनका सिर्फ फर्क इतना ही है कि उनके फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है और वेवलेंथ अलग अलग है, बस बाकी कुछ नहीं। Yes, so we can just see that this ultraviolet rays have their wavelength in the range of 10⁻⁻8 meter, remember, which is going to be very very small. We can just imagine only, we cannot give an example. अगर एग्जाम्पल ही देना हो तो इतना बस बोल सकते हैं कि मिलीमीटर के और ज्यादा पार्ट्स हमको करने पड़ेंगे, 10,000 क्या 1 लाख तक पार्ट हमको करने पड़ेंगे। इवन यहाँ पे एक्स रेज की अगर बात करते हैं तो देयर वेवलेंथ इज स्टिल स्मॉलर विच इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो मतलब वो एंगस्ट्रॉम हो गया, ऑलमोस्ट एंगस्ट्रॉम की रेंज में वो उनका वेवलेंथ आता है, जो कि 1 मिलीमीटर के करोड़ पार्ट के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर को अगर हम करोड़ पार्ट्स में 1 करोड़ पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक पार्ट ये रहेगा एक्स रे का वेवलेंथ, याद रखो। और गैमा रेज का जो वेवलेंथ है वो तो उससे भी छोटा होता है, उससे भी कम, जो कि ऑलमोस्ट 10⁻⁻12 के रेंज में होता है। सोचो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, कैन सी। सो दिस इज द रेंज। अगर तुमको एक रफ आइडिया अगर चाहिए ये कितना छोटा या कितना बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। सो यू कैन जस्ट कंपेयर देम विद द साइज ऑफ सम बिल्डिंग, और बहुत बड़ा जो बिल्डिंग होता है जैसे पार्लियामेंट वगैरह है, तो उसके साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं आराम से। देन अगेन द माइक्रोवेव्स have the wavelength in the range of 10⁻⁻2 meter. We can just compare them with the size of human. Okay, तो 10⁻², मतलब ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के आसपास बन गया। सो इट इज वेरी स्मॉल, बट जस्ट वी कैन सी दैट एक रफ आइडिया हम देख सकते हैं। देन अगेन वी कैन जस्ट सी दैट द इंफ्रारेड रेज, यस शायद ये इसका है, दिस इज करेस्पॉन्डिंग टू माइक्रोवेव्स एक्चुअली। हनी बी के साइज का जो है तो वो माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ हो सकता है, हम देख सकते हैं आराम से। देन कम्स टू द इंफ्रारेड रेज। सो नाउ वी कैन सी इंफ्रारेड रेज का जो वेवलेंथ है तो वो एक पिन जो होता है कि नहीं, जो पिन पिन का जो हेड है,
तो पिन के हेड के बराबर हम देख सकते हैं आराम से। इसका जो पिन का हेड होता है वो ऑलमोस्ट इस साइज में हुआ करता है, तो ये हम देख सकते हैं आराम से। देन अगेन इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द लाइट, विजिबल लाइट, देन अब यहाँ पे बायोलॉजी जिनका है उनको पता होगा प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनका जो साइज होता है तो ऑलमोस्ट उसी साइज के बैक्टीरियाज, और बैक्टीरिया से भी छोटा जो होता है वो प्रोटोजोन्स वगैरह होते हैं। तो इन इस साइज का विजिबल कलर का या विजिबल लाइट का वेवलेंथ हुआ करता है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड हाउ स्मॉल इट मे बी। एंड अगेन हियर इट इज अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज का जो वेवलेंथ है वो इतना छोटा होता है जो एक मॉलिक्यूल के साइज के बराबर हुआ करता है। Then again, X-rays have their wavelength so small that is the of the size of atom. एटम के साइज के बराबर का होता है। अभी मॉलिक्यूल बड़ा होता है, एटम छोटा होता है कि नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर मेक अप अ मॉलिक्यूल। देयरफॉर अल्ट्रावायलेट रेज हैव द लार्जर वेवलेंथ, ठीक है, which is of the size of molecules, but X-rays have a very smaller wavelength which is of the size of atoms. And here gamma rays, finally you can just see that they are of the size of nucleus, जो कि एटम का सेंट्रल पार्ट गिना जाता है। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। सो दैट न्यूक्लियर साइज ये जो है दैट इज द जस्ट आइडिया, रफ आइडिया देने के लिए वी कैन जस्ट कंपेयर द size of nucleus with the wavelength of gamma rays here. So this is all about the rough idea of the wavelength of all type of electromagnetic waves here we can see. But just remember that the end points here, the maximum जो है maximum wavelength किसका होता है, तो ये रेडियो वेव्स का हुआ करता है। और सबसे मिनिमम वेव्स जो है, मिनिमम वेवलेंथ जो है वो इन गैमा रेज का हुआ करता है। तो मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ सबसे कम होगा। और इनके बारे में अगर बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये देखो 1 किलोमीटर मतलब वेरी लॉन्ग हियर इन दिस केस, बट हियर इट विल बी वेरी वेरी शॉर्ट ऑलमोस्ट दिस इन दिस वे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रफ आइडिया अबाउट द साइज ऑफ the wavelengths. Yes, here also we can just see the same thing once again. ये जो डायग्राम है इसके अंदर भी तुम देख सकते हो आराम से कि ये जो 10⁻³ यस ओके, सो ये जो है ये भी उसी डायग्राम, वही डायग्राम है एक्चुअली। ओके, सो वी कैन जस्ट सी द नेक्स्ट हियर। ये तो हमने ऑलरेडी अभी देखा। Okay, let us now see one by one waves, ठीक है, इन डिटेल। ओके, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। ओके, तो व्हाट आर रेडियो वेव्स and what are their uses and what is the method of production? Yes, so we can just see that the radio waves are actually produced by the alternating current. Remember, तो alternating currents के द्वारा रेडियो वेव्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, याद रखो ठीक से। एंड अगेन यू कैन सी ओके, इनका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एसी करंट। ओके, हाँ सॉरी। ओके, सो एसी करंट्स जो होते हैं, एसी की वजह से मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट्स की वजह से ही ये वेव्स जो है वो पैदा होते हैं, याद रखो ठीक से। और इनका जो यूज है, तो ये हम देख सकते हैं कि रेडियो स्टेशन के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग एंटीना होता है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग एंटीना ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, और उसके कारण हम ये सभी प्रोग्राम्स जो है वो सुन सकते हैं। ओके, सो रेडियो वेव्स का जो यूज है वो ये हम समझ सकते हैं आराम से। देन इवन मैग्नेटिक रेजोनेंस, तुमने एमआरआई वगैरह सुना रहेगा, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर भी शॉर्ट वेवलेंथ के रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ओके, शॉर्ट वेवलेंथ के जो रेडियो वेव्स है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं एमआरआई के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस सिस्टम बोलते हैं इसको। Yes, then comes to the microwaves.
सो यार माइक्रोवेव्स के अंदर हम देख सकते हैं कि रेडियो वेव्स से भी कम वेवलेंथ वाले जो वेव्स है वो है माइक्रोवेव्स, ठीक है, जो कि उनका फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है, रेडियो वेव्स से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, दीज आर द माइक्रोवेव्स, एंड माइक्रोवेव्स आर एक्चुअली द हीट रेज। ये इनको हीट रेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये जिस भी सब्सटेंस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो उसके अंदर एक तरह से हीट पैदा करते हैं, और इसीलिए उनको हीट रेज बोल सकते हैं आराम से। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द हीट रेज, दे बिकॉज दे ट्रांसमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, और इसीलिए उनको माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज किए जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसके अंदर माइक्रोवेव्स ही यूज होते हैं, इसीलिए उसको एक्चुअली माइक्रोवेव ओवन कहा जाता है। और इनका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, इट इज अगेन एसी करंट। ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट्स जो है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही वो पैदा होते हैं, जो कि हमारे एसी मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी वो चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके क्या किया जाता है कि दो प्लेट्स जो है, तो वो दो प्लेट्स के बीच में जो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाता है, सपोज दीज टू प्लेट्स आर जस्ट कनेक्टेड विद द एसी सोर्स, and as soon as this is switched on, what happens is there is a very fast change in the electric field between these two plates here. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, and because of that what happens is the change in electric field actually produces the changing magnetic field, and this magnetic field again in turn produces the electric field, and this process continues, and this in this region the electromagnetic waves are produced which are of this frequency or this wavelength, which is called as microwaves. And because of these microwaves produced here in the oven, we can just see that this heat is large amount of heat will be produced here in the interior part, and because of that जो भी हम डिजायरेबल जो है तो वो खाना पकाना जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे। इवन सन से भी हमको ये माइक्रोवेव्स मिलते हैं, बिल्कुल। सन से जो हमको हीट मिलता है वो हीट एक्चुअली माइक्रोवेव्स ही है। इवन इंफ्रारेड रेज भी उसका उसके अंदर आता है, हीट रेज भी बोलते हैं उसको भी। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट द यस रडार जो सिस्टम होता है, तो रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट्स। सो ये जो डिफेंस सिस्टम है एक्चुअली, तो इस डिफेंस सिस्टम को यूज करके भी कुछ मीन्स अगर सपोज कोई भी जो व्हीकल होता है, तो वो व्हीकल अगर सपोज ट्रेवल कर रहा है तो उसके तरफ अगर हम सपोज ये इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर पॉइंट करते हैं तो ओके, सो इस टाइप का जो डिवाइस होता है, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो इस टाइप के डिवाइस होते हैं, अरे यार, यस, ओके, सो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली ऐसा होता है कि जो इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं वो उन पुलिस ट्रैफिक पुलिस को दिए जाते हैं, और वो अगर सपोज एक व्हीकल की तरफ अगर पॉइंट करते हैं तो उस व्हीकल का जो स्पीड है वो स्पीड वहां से निकल आता है। तो दैट इज दिस आल्सो यूज द रेडियो वेव्स ओनली। सो ये इसके एक तरह से प्रॉपर्टीज और यूजेस है। नेक्स्ट वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज आर जस्ट शॉर्ट वेवलेंथ रेज, ठीक है। ये जो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव से भी छोटा होता है, और इंफ्रारेड रेज जो है ये जस्ट रेड से पहले के रेज है, इसलिए उनको इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। बट देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो वेरी सिमिलर टू द माइक्रोवेव्स ओनली। तो ये माइक्रोवेव्स के जैसे ही इनके भी प्रॉपर्टीज होते हैं, नो डाउट, और इसी वजह से इनको इनके अंदर भी हीट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है। These rays also have the property that whenever they incident on the substance, they just produce heat in that substance and just increase the temperature of that substance, in short. तो ये इस तरह से infrared rays के बारे में हम देख सकते हैं। Then we can just go to the yes infrared rays की वजह से ही हमको गर्मी महसूस होता है, ठीक है। ये जो हम जब हाथ सामने रखते हैं, सन के सामने रखते हैं, तो हमको जब ये गर्मी मिलता है तो वो गर्मी इन्हीं इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है एक्चुअली। ओके, इवन कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आसपास भी जब हम हाथ लगाते हैं तो उससे भी हमको एक गर्मी महसूस होता है,
That is also because of these infrared rays actually. एंड इवन थर्मोग्राम जो होता है उसके अंदर भी ये इंफ्रारेड रेज बहुत इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करते हैं एक्चुअली। तो थर्मोग्राम यूज करके हम जो एक इस टाइप का टेम्परेचर का फोटो ले सकते हैं। ठीक है, जो अगर सपोज इस टाइप का अगर हाथ का अगर फोटो लेते हैं तो इंफ्रारेड रेज यूज करके जब हम ये फोटोग्राफ निकालते हैं तो उससे भी हमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें से पता चल जाता है कि अंदर अंदर का जो इसके जो कलर्स है, तो फोटोग्राफ के अंदर आने वाले जो कलर्स है तो वो कलर्स यूज करके हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसमें से भी इन्फर कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ इंफ्रारेड रेज। इवन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग इंफ्रारेड रेज, रिमेंबर। जैसे मार्स या दूसरे किसी प्लेनेट के ऊपर जब हम फोटोग्राफ निकालते हैं, या इवन फोटोग्राफ्स इन फॉग, फॉग के अंदर भी फोटोग्राफ निकाला जा सकता है यूजिंग दिस इंफ्रारेड रे कैमरेज। तो इंफ्रारेड कैमरेज जो होते हैं तो उनको यूज करके हम फॉग या मिस्ट जो होता है तो मिस्ट के अंदर भी हम फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। एंड इवन तुमने ये भी सुना होगा आईआर कैमरेज के बारे में, सुना है कभी आईआर कैमरेज? तो जो कि अभी सपोज नॉर्मल जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो तो नॉर्मल जो जब उजाला होता है मतलब लाइट जब होता है तभी वो ये फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन उनका वीडियो शूटिंग वगैरह फुटेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ये जो आईआर कैमरेज होते हैं ना, तो ये आईआर कैमरेज क्या करते हैं कि रात के समय में भी वो शूटिंग कर सकते हैं वीडियो। मतलब अभी रात में लाइट तो होता नहीं है या बहुत कम होता है जिसकी वजह से फोटो इतना अच्छा नहीं आता है। बट ये आईआर कैमरेज अगर आप यूज करते हैं, इफ यू जस्ट यूज द इंफ्रारेड कैमरेज, देन वी कैन जस्ट टेक द फोटोग्राफ्स क्लियरली, एंड इवन वीडियो शूटिंग भी बहुत क्लियर कट हो पाता है। तो इसीलिए जो रात के समय जो कैमरे सीसीटीवी कैमरेज लगाते हैं, रात का वीडियो शूटिंग करने के लिए जो कैमरेज लगाते हैं, तो वहाँ पे अंधेरा भी अगर रहेगा तभी भी अगर वहाँ पे कोई आता है तो वो पर्सन का जो फोटोग्राफ और वीडियो शूटिंग जो है वो अच्छी तरह से वो कर सकता है आराम से। सो दिस इज द यूज ऑफ इंफ्रारेड रेज, यू कैन जस्ट सी। देन गो टू द नेक्स्ट रेज, दैट इज विजिबल लाइट। अभी विजिबल लाइट के यूजेस तो उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। The visible light has unlimited uses actually, because we can just see the objects, because these objects just reflect the light into our eyes, and that's why we can see the objects. अगर लाइट नहीं होता तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते थे। तो ये जो देखने का जो काम है मीन्स एक्चुअली देखो, अभी इसमें एक बात समझने जैसी जरूरी है कि ये जो विजिबल लाइट है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, लेकिन इनके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो हम उनसे देख सकते हैं? जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाकी जो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन वो कभी हमारे देखने में काम नहीं आते। वो उनको कभी हम लाइट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको रेस बोल सकते हैं, लेकिन लाइट कभी नहीं बोला जाता क्योंकि उनके जो प्रॉपर्टीज अलग है। ये जो विजिबल लाइट है इसका प्रॉपर्टीज ये है कि दीज वेव्स एक्चुअली अफेक्ट आवर रेटिना। तो हमारा जो रेटिना बना हुआ है वो रेटिना इन लाइट के लिए सेंसिटिव बना हुआ है। तो मतलब ये दोनों बातें हैं कि ये जो रेज है वो हमारे रेटिना को अफेक्ट करते हैं, और हमारा रेटिना जो है वो इनविजिबल रेज की वजह से अफेक्ट होता है, तो उसके ऊपर उसका परिणाम होता है। इसीलिए हम रेटिना के ऊपर हमारा जो सामने जो भी है उसका इमेज बना पाते हैं, और उसी वजह से हमको लाइट को यूज करके दिखाई देता है। बाकी जो बाकी जो सब रेज है उनको यूज करके हम देख नहीं सकते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, बिकॉज दीज रेज just affect our retina, and that's why they are called as visible light। उसमें भी अलग अलग टाइप्स है जैसा कि हम जानते हैं, दे आर फ्रॉम रेड टू वायलेट। ठीक है, रेड से लेके वायलेट तक या वायलेट से लेके रेड तक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ये अलग अलग टाइप्स इसमें बनते हैं। तो उसकी वजह से हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और कुछ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करता है। तो जो वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट करता है तो वो कलर हमको उस ऑब्जेक्ट का दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको अगर रेड कलर का दिख रहा है तो इसका रीजन ये है कि वो रेड कलर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी सब वेव्स वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेड कलर का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमको रेड कलर का दिखता है। या जो भी है मतलब जो भी कलर हमको दिखता है वो एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो दिखता है। यस, एंड ऑल्सो वी कैन जस्ट सी दैट द प्रिज्म is able to separate all these colors, 7 colors here। तो व्हाइट लाइट अगर हम इस इंसिडेंट करते हैं तो प्रिज्म की वजह से ये 7 कलर्स अलग अलग हो जाते हैं।
Yes, then comes to this ultraviolet rays. We can just see shorter wavelength. इनका जो wavelength है वो जैसा कि हमने बताया है ऑलरेडी कि वायलेट कलर से भी छोटा होता है। तो वायलेट कलर के जो वेव्स है या रेज है उनसे भी छोटे वेव्स जो है तो वो अल्ट्रावायलेट रेज है। अभी हम देख सकते हैं कि इनका जो वेव्स है ओके, सो बेसिकली दिस इज द शॉर्टर वेवलेंथ। अल्ट्रावायलेट रेज जो है तो इनका जो वेवलेंथ है वो वायलेट रेज से भी कम है, इसलिए इनको अल्ट्रा वायलेट रेज बोला जाता है। अल्ट्रा मतलब पहले, तो वायलेट से भी पहले के जो रेज है उनको हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। दे कैरी मोर एनर्जी एंड एज सुन एज मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑल्सो। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर देन लाइट। दे कैन किल बैक्टीरियाज। ठीक है, ये जो है इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो बैक्टीरियाज को भी वो किल कर सकते हैं। और इसी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज को जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना वो स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो जैसे देखो मेडिकल में तुमको पता होगा डॉक्टर्स जो हमको इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं तो एक बार इंजेक्शन दिया हुआ जो है वो डायरेक्ट कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। यस, बिकॉज वो सेम इंजेक्शन जो है वो दूसरे पर्सन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर वायरस या बैक्टीरिया ट्रांसफर होने का उसके अंदर एक चांस होता है। और इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक पर्सन के लिए ही यूज के लिए बने हुए होते हैं। यस, लेकिन अभी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत कॉस्टली होते हैं। अभी अगर मान लो एक 1 लाख या 50,000 का कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो अगर एक पर्सन के लिए यूज करके करने के बाद अगर डायरेक्ट कचरे के डिब्बे में अगर डालना हो तो वो तो उस डॉक्टर को भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कॉस्टली होते हैं तो उनको मोस्टली क्या करते हैं कि उनको यूज करते हैं। एक एक पर्सन को यूज करने के बाद दूसरे पर्सन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बीच में उनको स्टरलाइज करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर सपोज एक पर्सन के लिए यूज किया और उसके बाद उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया या वायरस अगर जम गए तो वो वायरस किल करने के लिए वहां पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस जरूरी होता है। और इस स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक बहुत फोकस्ड एक अल्ट्रावायलेट रेज के फोकस में रखा जाता है। एक जो अल्ट्रावायलेट रेज के जोन में रखा जाता है, जिसकी वजह से एक कुछ देर तक अगर हम उसको अल्ट्रावायलेट रेज के जोन में रखेंगे तो ये गारंटी है कि उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज या कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये बैक्टीरियाज और वायरस जो है वो कंप्लीटली पूरी तरह से किल किए जाने का यहाँ पे प्रोसेस होता है, उसको ही स्टरलाइजेशन बोलते हैं। सो these medical instruments are sterilized using these ultraviolet rays. That is the main advantage or uses of these ultraviolet rays here. Next, we can just see that these ultraviolet rays cause a skin cancer also. तो ये तुमने सुना होगा ऑलरेडी कि स्किन का जो कैंसर है तो ओजोन लेयर जो है वो तुमको पता है ऑलरेडी कि ओजोन लेयर जस्ट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस अल्ट्रावायलेट रेज जस्ट कमिंग फ्रॉम सन। तो सन में से सारे रेज निकलते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज और उसके ऊपर के जो एक्स रेज वगैरह जो सब हार्मफुल रेज जो है ये हार्मफुल रेज एक्चुअली सन के में से निकलते हैं, लेकिन हमारे अर्थ तक पहुंच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर। एंड स्पेशली इन एटमोस्फियर के अंदर भी जो ओजोन लेयर जो है तो वो ओजोन लेयर स्पेशली इन रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है। एक तरह से मतलब वो एक तरह से ये ओजोन लेयर जो है ओजोन लेयर के अंदर से वो पास नहीं हो सकते हैं, और इसी वजह से ये जो रेज है वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप अभी जानते हो कि कुछ सालों से ओजोन लेयर्स के अंदर भी कुछ बीच में होल्स गिर रहे हैं। मतलब जो बहुत बड़े बड़े जो मिल्स होते हैं या बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं उनमें से जो एसी यूज किया जाता है, तो एसी यूज करने से और उससे भी आगे जाके जो हाँ एसी एसी मेन है उसमें। तो रेफ्रिजरेटर और एसी यूज करने से क्या होता है कि उसके अंदर एक गैस जो होता है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके उस एक गैस होता है जिसको सीएफसी भी बोला जाता है शॉर्ट शॉर्ट में। तो ये सीएफसी गैस उसमें से निकलता है और वो गैस जब ऊपर जाता है तो ओजोन लेयर को कन्वर्ट कर देता है। मतलब जहाँ जिस पार्ट में वो जाएगा तो उस रीजन के अंदर का जो ओजोन है उसको वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। और अभी अगर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया तो उधर का ओजोन तो खत्म हो जाएगा, और वो ओजोन अगर खत्म हो जाएगा तो वहां पे एक तरह से एक होल गिर जाएगा जिसमें से ये रेस जो है वो इंटर कर सकते हैं
और अर्थ के सरफेस तक पहुंच सकते हैं। और इसकी वजह से जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स वगैरह है, या जहाँ पे सीएफसी गैस निकालने वाली जो कंपनीज या मिल्स है, तो वहाँ पे मोस्टली इस टाइप के ओजोन लेयर्स में बहुत होने वाले जो होल्स है, इनकी वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेज एटमॉस्फेयर के अंदर या अर्थ के सरफेस के तक पहुंचने की वजह से बहुत सारे स्किन कैंसर्स डिटेक्ट हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर्स होते हैं इसी वजह से कि ये सीएफसी गैस ऊपर जाके उस ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट करता है, और उस होल में से ये अल्ट्रावायलेट रेज इंटर करते हैं और ये स्किन कैंसर पैदा करते हैं। तो ये सब हम चीजें समझ सकते हैं आराम से। दैट्स व्हाई दीज रेज आर एक्चुअली हार्मफुल, नो डाउट, बट दे आर very important also. They synthesize vitamin D अंडर आवर स्किन। तो हमारे स्किन के नीचे वो विटामिन डी सिंथेसाइज करते हैं, स्पेशली जब हम सवेरे सवेरे जब हम सन के धूप में बैठते हैं, तो सन में से जो निकलने वाले जो रेज है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली कि विटामिन डी जो है एक लिमिटेड अमाउंट में अगर हम उसको एक्सपोज होते हैं, तो हमारे स्किन के नीचे विटामिन डी पैदा करने का कैपेसिटी भी उनके अंदर होता है, जो कि बहुत अच्छा है एक्चुअली। बट ज्यादा एक्सपोजर उसका भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं आराम से। दीज आर द uses of ultraviolet rays, here we can see. Then comes to x-rays. Now x-rays are the rays which are still lesser wavelength than ultraviolet rays here. And x-rays का जो uses है, तो वो भी तुमको पता होगा ऑलरेडी कि x-rays यूज करके ही हम फोटोग्राफ लेते हैं। ठीक है, जो एक्सरे मशीन के द्वारा जो फोटोग्राफ लिए जाते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ बोन का स्ट्रक्चर हमको मिलता है। ठीक है, बोन के फोटोग्राफ्स हमको मिलते हैं, क्योंकि ये जो रेज है, एक्सरेज का एक कैटेगरी जो है, एक वेवलेंथ जो है, वो एक्चुअली हमारे स्किन में से पास हो सकता है। जो सॉफ्ट चीजें होती है, जैसे पेपर है या क्लॉथ्स है या हमारा ब्लड फ्लेश, उसमें से वो पास हो जाते हैं आराम से। बट दे कैन नॉट पास थ्रू द हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बोन और मेटल। तो मेटल में से वो पास नहीं हो सकते, बोन में से पास नहीं हो सकते। इसीलिए इनको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फ्रैक्चर्स इन द बोन्स। तो बोन के अंदर फ्रैक्चर कहाँ पे है वो डिटेक्ट करने के लिए ये रेज यूज किए जाते हैं, एक्स रेज यूज किए जाते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि कोई 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 जगह पे स्मगलिंग रोकने के लिए भी एक्चुअली ये रेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्मगलिंग वगैरह, और इवन जो इंजीनियर्स के द्वारा, यस, इंजीनियर्स के द्वारा कोई कोई जो ये होते हैं मेटल्स होते हैं, तो इन मेटल्स के अंदर के जो ये है क्रैक्स हैं, तो वो क्रैक्स ढूंढने के लिए भी इसे यूज किया जाता है, एक्सरेज को यूज किया जाता है। जैसे हम हमारे नॉर्मली हमारा बोन का एक्सरे निकालते हैं, वैसे ही मेटल का भी एक्सरे निकाला जा सकता है, जिसको यूज करके हमको इसमें से पता चल जाएगा कि उसमें कहाँ पे क्रैक है, इंटरनल क्रैक, जो कि बहुत छोटा होता है, जो हमको आंखों से भी नहीं दिखता है। तो वो क्रैक्स जो है वो एक्चुअली एक्सरेज यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्योंकि उस मेटल से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है, और वो इंस्ट्रूमेंट अगर बहुत स्ट्रांग होना अगर एक्सपेक्टेड है, जैसे कंक्रीट का कोई अगर पिलर बनाना है, तो वो पिलर तो बहुत स्ट्रांग होना एक्सपेक्टेड है, और अगर उसके अंदर थोड़ा भी अगर क्रैक है, तो वो मीन्स उसका हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वो इस टाइप के जो क्रैक्स है, वो क्रैक्स डिटेक्ट करने के लिए उनको एक्सरेज के फोकस में रखा जाता है, और एक्सरेज का फोटोग्राफ निकालने से हमको ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कहीं क्रैक क्रैक वगैरह है या नहीं है अकॉर्डिंगली। और नो डाउट इवन एक्सरेज ऑल्सो कैन कॉज अ स्किन कैंसर, नो डाउट। अगर ज्यादा समय तक अगर एक्सरेज के अंदर अगर रहते हैं, तो उसके अंदर उसकी वजह से भी स्किन कैंसर हो सकता है, नो डाउट। सो ये भी इसका एक हार्मफुल या एक डिसएडवांटेज है बोल सकते हैं आराम से। एंड इवन yes, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स रेज। देन कैन कम टू gamma rays. Gamma rays are very very short wavelength rays which are having very high penetrating power actually. इनका penetrating power भी बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि they can just penetrate through 4 millimeter lead sheet. सोचो, 4 मिलीमीटर लीड का जो शीट होता है, 4 मिलीमीटर थिकनेस वाला, 4 मिलीमीटर मतलब ऑलमोस्ट आधा सेंटीमीटर ही हो गया। तो आधे सेंटीमीटर के बराबर का एक लीड का अगर शीट हमने लिया, तो उसमें से भी ये गैमा रेज पास हो सकते हैं, they can pass through. That means if we take the photographs using these gamma rays, then we can just see through the 4 millimeter sheet also.
तो मतलब इतना वो पेनिट्रेटिंग पावर इनका ज्यादा होता है, जिसके कारण इनको ऐसे ही एरियाज में यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला जो हम देख सकते हैं कि रेडिएशन ट्रीटमेंट। तुमने कभी गैमा थेरेपी का नाम सुना है? मेडिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है गैमा थेरेपी करके। ये गैमा थेरेपी ऐसा है कि उसके अंदर गैमा रेज आर यूज्ड एज अ नाइफ्स। अभी नॉर्मल जो नाइफ होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, नाइफ मतलब चाकू, ठीक है ना। तो चाकू जो होता है वो उसके उससे उसको यूज करके ही हम ऑपरेशन करते हैं। अभी मान लो पेट का वगैरह ऑपरेशन करना हो तो वहां पे हम चाकू वगैरह यूज करके ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत नाजुक पार्ट होते हैं जैसे आंखें है या ब्रेन है, तो उनके जो ऑपरेशंस है वो नॉर्मल चाकू से नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो थोड़ा भी अगर हिल गया तो बहुत ज्यादा रिस्क है वहाँ पे। तो इसलिए आंखों के ऑपरेशंस या ब्रेन के ऑपरेशंस करने के लिए वहाँ पे गैमा रेस को एज अ सर्जिकल नाइफ यूज किया जाता है। मतलब वो भी एक चाकू ही है, लेकिन वो चाकू ऐसा मेटल का बना हुआ नहीं है। वो गैमा रेज ही एक तरह से चाकू का काम करते हैं, क्योंकि गैमा रेज जहाँ पे भी इंसिडेंट होते हैं तो उधर का वो पार्ट जो है वो किल कर देते हैं, या वो वहाँ पे उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये फोर्स अप्लाई करने का जो टेंडेंसी है वही एक्चुअली काम में आता है इनको सर्जिकल नाइफ के फॉर्म में यूज करने के लिए। और इवन उनका ये भी उसका एडवांटेज है कि जहाँ पे भी उनको हम गैमा रेज को इंसिडेंट करेंगे तो उधर के जो सेल्स है, कैंसर के सेल्स या ट्यूमर्स वगैरह जो होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जल जाते हैं या इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो गैमा थेरेपी है तो वो भी बहुत वाइडली यूज किया जाता है मेडिकल साइंस के अंदर, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड इवन यू कैन जस्ट सी यस, अभी यहाँ पे ये तो फिल्म फिल्म के बारे में है, वो आपने सुना भी होगा, अगर फिल्म देखा है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि एक्चुअली दिस इज गैमा रेडिएशंस की वजह से ये कुछ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो उसका ये एक तरह से इफेक्ट है। और इवन न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उनमें से भी गैमा रेज बहुत ज्यादा अमाउंट में इमिट किए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इज द मेन सोर्स ऑफ गैमा रेज। एक्चुअली गैमा रेज आर स्पॉन्टेनियसली इमिटेड बाय द radioactive nucleus like radium or uranium and so on like that. So therefore न्यूक्लियर इमिशन के अंदर भी ये इमिट किए जाते हैं। यस, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द रेज यू कैन जस्ट सी हियर। सो ये सभी रेज के बारे में हमने अभी देखा। ओके, सो we'll just summarize all these things just in the next lecture, in tomorrow's lecture। तो कल के लेक्चर में हम ये फिर से एक बार समराइज करेंगे, और जो भी कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स जो मिस हुए हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।